قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے۔ محسن بیٹا میرے ایک شاگرد بھی ذاکر بہت نام کمایا، محسن میرے شاگرد ہیں اور اس وقت میں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نام بنا۔ علامہ اقبال کہتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیر میں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیر میں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ میں عرض کرتا ہوں کربلا کے مصائب کو نصاب میں شامل کرنے کی جتنا اس دور میں ضرورت ہے شاید پہلے نہیں تھی۔ خبر اخبار کا ضیاء شاید چیخ چیخ کے کہتے ہیں بچوں پر پاکستان میں اتنا مظالم ہوتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے گردے نکال لیتے ہیں، آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ تو جب اگر کربلا کے مصائب شامل نصاب کیے جائیں تو ہمدردی کے جو جذبات بچوں کے تحفظ کے ابھریں گے وہ قوم کی تربیت اور تہذیب کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کے غم میں، حسین کے بھانجوں کے غم میں، حسین کے بھتیجوں کے غم میں، اہل بیت کے غم میں رونے والا کوئی عزادار کسی بچے کو اغوا کرنے کا بھی سوچے، یہ خیال کسی عزادار کے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتا۔ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین سنی کا بھی ہے، حسین دیوبندی کا بھی ہے۔ اللہ کا ولی پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، حسین پوری انسانیت کے رہبر اور ہادی ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین کے جو معصوم خانوادہ رسالت کے بچے ہیں ان کے نصاب میں اگر 5ویں 8ویں 10ویں کی کتب میں اگر واقعات کربلا شامل کیے جائیں تو بچوں کے تحفظ اور ہمدردی اور بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب آپ ان مصائب کو نصاب کی کتب کے ذریعے قوم تک نہیں پہنچائیں گے وہ یاد رکھیں جو بھی ذریعہ اختیار کر لیں قوم کی تہذیب اور تربیت نہیں ہو سکے گی۔ کبھی کوئی عزادار بچوں پر ظلم کا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ ایک بیوی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی ان محمد کے بارے میں سب کہتے ہیں شریکت الحسین ہے۔ ایک بیوی شریکت غازی عباس بھی ہے، بی بی رقیہ بنت علی۔ بلال شاہ صاحب سید شہباز حیدر رضوی میرے دوست ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں۔ بی بی پاک دامن مجلس پڑھ رہے تھے، بعد میں میرے ساتھ انہوں نے لنگر کیا، کہنے لگے منظر بھائی بات یہ ہے کہ جو کربلا نہیں جا سکتا کاش کم از کم بی بی پاک دامن کی زیارت کے لیے ضرور آئے۔ کربلا کا ایک حصہ تو یہاں بھی موجود ہے۔ اس بی بی نے تبلیغ اسلام کے لیے جو کام کیا ہے نوجوان نسل کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں لاہور میں باقی شعراء نے شوکت رضا نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ داتا صاحب آئے ہیں لاہور میں 600 سال بعد بی بی پاک دامن کے۔ بی بی رقیہ بنت علی جناب بی بی سلام اللہ علیہا بی بی پاک دامن جن کا لقب ہے، یہ داتا صاحب سے 600 سال پہلے لاہور تشریف لائیں۔ تبلیغ اسلام لاہور والے شکریہ ادا کرو بی بی پاک دامن کا، آپ کو مسلمان کرنے میں سارا کردار بی بی پاک دامن کا ہے۔ اور جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یہ بی بی پاک دامن کے دائیں طرف دیکھیں ایک سرکاری طور پر تختی لگی ہوئی ہے کہ داتا صاحب یہاں آتے تھے، 600 سال بعد تشریف لائے، وہ یہاں پر جگ چلاتے تھے اور جس چھوٹی سی مسجد میں داتا صاحب عبادت کرتے تھے بی بی پاک دامن کے ساتھ وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ تو اب لاہور کو پہلا جو لاہور نگری ہے وہ بی بی پاک دامن کی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے، اس نے 6 فرزند قربان کیے اسلام پر۔ اس خاتون کی ایک صاحبزادی اسلام پر قربان ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بی بی حمیدہ خاتون بچی کا نام ہے، 7 سال کی بچی ہے۔ شام غریبہ میں جب بھگدڑ مچ گئی نا تو گھوڑے دوڑے اور خیام کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بچی بدحواس ہو کے بھاگی، گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ گئی، یہ علی قاسم کی طرح یہ بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ بی بی حمیدہ خاتون شہید ہے، یہ جناب بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ہے۔ 6 بیٹے قربان کیے اس بی بی نے۔ 2 شام غریبہ گھبرا کے بارش بھاگے نا جنگل میں، گھوڑوں کے زد میں آ گئے، یہ شہید ہو گئے۔ 2 مسافر گرے، اونٹوں سے گرے، اور یزیدی فوج وہ لشکری جو تھے بچوں کو اٹھانے نہیں دیتے تھے، یہ شدید زخمیوں کے پتھروں میں ان کے سر پھٹ گئے۔ جب کوئی آیا نا وہاں کا مقامی آدمی تو بچوں نے بڑی آہ بھر کے کہا کہ اب زندگی کی تو کوئی امید نہیں ہے، ہماری قبروں پہ تختی لگا دینا کہ ہم رقیہ بنت علی کی اولاد ہیں۔ جب ہماری ماں شام کی مسافر کاٹ کے واپس آئے گی ہماری خوشبو سے پہچان لے گی کہ میرے رخت جگر یہاں دفن ہے۔ اور 2 بچے اس بی بی کے کام ہے۔ جناب امیر مسلم کی شہادت کے بعد
इन बच्चों के मसाइल को उसमें शामिल किए जाएं। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अर्ज करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अर्ज करता हूँ। मैं किसी एक मकतब फिक्र की बात नहीं कर रहा। इन बच्चों के मसाइल को उसमें शामिल नहीं करते, आपकी आइंदा नस्लें सुधर नहीं सकती, आपका पाकिस्तान महफूज नहीं है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा जब रवाना होने लगे ना शहादत से कबल, तो देखा दो जना बहर तैयार खड़ा था। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होकर फरमाते हैं, मेरे तो सारे शहीद हो गए, दो जना को किसने सजाया है? खयाम से आवाज आई, रुकैया ने। इमाम हुसैन रो पड़े, खैमे में आए, जनाब रुकैया को बुलाया, अपनी बहन के सर पर शफकत से हाथ रखा, कहते रुकैया तुमने सारी जिंदगी घर में एक घरेलू खातून की हैसियत से गुजारी है। मेरे बाबा जनाब अमीर कायनात मौला अली ने आपको कोई जंगी उमूर नहीं सिखाए। आपको घोड़े पर दीन रखना किसने सिखाया? आपको घोड़े की रकामें सजाना किसने सिखाया? बीबी रुकैया ने रोकर कहा, रात खैमे में गाजी अब्बास आए थे, कहते रुकैया कल शायद मैं न रहूं, ज़ैनब की गाजी अब्बास तुम हो, हुसैन का घोड़ा तुमने सजाना है, हुसैन को गाजी अब्बास की कमी महसूस ना हो। अदादारो बीबी कहती है, जनाब रुकैया कहती है, गाजी अब्बास जुलजना को खैमे में रात के वक्त लेकर आए, दीन रखी फिर उतारी, फिर रखी फिर उतारी, कहती रुकैया एक मर्तबा जमीन रख कर दिखाओ, ये जुलजना के ऊपर रकाबे सजाओ। मुझे मेरे भाई गाजी अब्बास ने जो तरबियत दी है, मैंने आपको ये जुलजना तैयार किया है। अदादारो ये वो बीबी है, ये बीबी ज़ैनब के साथ ये शरीकतुल गाजी अब्बास बीबी है, जनाब रुकैया शरीकतुल गाजी अब्बास है। और तमाम रास्ता इस बीबी ने आगे बढ़ के जनाब ज़ैनब से पहले पत्थर खाए हैं। इस बीबी का सर जनाब ज़ैनब से ज्यादा जख्मी हुआ है। ये बीबी पूरा रास्ता पत्थर खाती गई। इस बीबी का कद मुबारक अपने भाई की तरह जनाब बीबी ज़ैनब से ज्यादा था। अपने ज्यादा कद की वजह से ये ज्यादा लव लिहाज हो गई। बीबी इतनी लव लिहाज हो गई कि चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। अदादारो जब ये मक्तल में जब ये कत्ल करबला हुआ, तो इसके बाद इस काफिले को गिरफ्तार करके पहले कूफा लाया गया। दल अमारा के बहन जनाब अमीर मुस्लिम का सर लटका हुआ। बीबी रुकैया ने सर मुबारक को देखा, कहती है मुस्लिम मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरे पर्दे का क्या हुआ, पर्दा तो ज़ैनब का भी नहीं है, पर्दा तो जनाब उम्मे कुलसूम का भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ, दो साहिबजादे आपके हवाले किए थे, मोहम्मद और इब्राहिम, मुझे बताओ मेरे बच्चे किसके हवाले किए हैं? अदादारों कटे हुए सर से आवाज आई, जहाँ अकबर गया एक अकबर का सदका गया, जहाँ असगर गया एक असगर का सदका है। अदादारों रिवायात में है, मैंने पढ़ा है, जब अमीर मुस्लिम शहीद हो गए ना, तो उनके बच्चे जिन्हें पनाह कहीं नहीं मिलती थी, रात के इंतशार और परेशानी के आलम में अंधेरी गलियों में घूम रहे थे कि छोटे भाई का किसी चीज में पैर अटका, छोटा भाई गिरा, देखा तो बाबा की लाश थी और बगैर सके थी। रोते कहते इब्राहिम क्या गुफा के लोगों में ये रिवाज नहीं है कि लाशों को दफन करे? अदादारा रिवायात में है, जब ये दोनों मजलूम बच्चे किस्मत की तंगी, किस्मत की सख्ती और दुरुस्ती के आलम में जब ये किसी तरीके हारिस के घर पहुंच गए, हारिस की बीवी बेचारी मोमना थी, मुझसे सवाल किया फेसबुक पे, कहते हैं कि ये मोमना थी, ये कैसे हो सकता है कि एक मोमना औरत एक ऐसे शख्स से शादी करे जो फासिक व फाजिर हो? मैंने कहा भाई वो मिक्स सोसाइटी थी, बदकिस्मती थी, बेटियां तो बेचारे बाप के सर के आगे सर झुका लेती थी, वो तो हाँ या ना करती ही नहीं थी। जहाँ बाप ने शादी कर दी, वो बेचारी मशरकी मुआशरा जिस तरह आपको कहानी में बताया जाता है इंतहाई हाँ करने वाला मुआशरा था, कोई खातून ना कर ही नहीं सकती थी। खातून को क्या पता कि किस तरह का फासिक व फाजिर इंसान मेरे गले पड़ा है। ये वो शहीद खातून है जिसने अमीर मुस्लिम के शहजादों को बचाते हुए जान कुर्बान कर दी है। हमारे इस्लामी तारीख तो पढ़े, मर्दों नहीं औरतों की शहादत, फातिमा की शहादत पढ़े, हारिस जैसे लईन की इस बीवी की, इस नेक खातून की शहादत पढ़े, दर्द आता है। इसकी बेटी की शहादत पढ़े, इसके बेटे की शहादत पढ़े। ये ले आई अमीर मुस्लिम के जोड़ी को ले आई, उन शहादातों के ले आई कि मैं इनको बचा लूंगी। रात को उनको ऊपर कमरे में रखा, उनको खाना खिलाया, दर्द का आलम है। बच्चा कहता है हमें उस तरह खाना खिला, खातून हमें उस तरह खाना खिला जिस तरह माँ खाना खिलाती थी। कहते तुम्हारी माँ किस तरह खाना खिलाती थी? कहते हैं इब्राहिम को दाएं दाजानू पे पिटाती, मोहम्मद को बाएं दानू पे पिटाती, एक लुकमा उसको खिलाती थी, एक मुझे खिलाती थी। हारिस की बीवी को मौका मिला, भी हारिस घर नहीं आया था। इस खातून ने बच्चों को ऐसे खाना खिलाया जैसे माँ खिलाती है, तो बच्चा रोता भी था, हंसता भी था। अरे मोहम्मद को तो ये भी पता है, एक 7 साल का बच्चा, एक 5 साल का है, बड़े का नाम इब्राहिम है, छोटे का नाम मोहम्मद है।
बच्चे को तो ये भी पता नहीं है हंसना कब चाहिए, रोना कब चाहिए। मासूम को ये पता नहीं है। इसने जब खाना खिलाना कहती है हारिस का घर है, बड़ा जालिम है मेरा शौहर, लालच इनाम के लालच में तुम्हारी तलाश में है, तुमने रात को आवाज नहीं निकाली, खामोशी से रहना है। इसने ताक्षा बंद कर दिया, चिराग बंद कर दिया, बहर ताला भारी लगा दिया, ऊपर की मंजिल पे सुला कर आई। आधी रात को छोटे भाई ने ख्वाब देखा, माँ ख्वाब में आई ना तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सका, वो रो पड़ा। जब रोड़ा तो बहुत रोया तो बच्चे ने बड़े ने उसके मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की थी, चुप कराऊं, लेकिन वो दाढ़े इतनी मार रहा था कि काबू नहीं हुआ। अरे कहता है ये बच्चे रो रहे हैं, किसके घर में है? उसकी बीवी कहते हैं ये हमसायों के बच्चे, नहीं कहता ये लावारिसों की तरह रो रहे हैं, हमसायों के होते तो वो इसे चुप करा देती, ये मेरे ऊपर के कमरे से आवाज आ रही है। बीवी बचाने की कोशिश करती रही, इसने चाबी नहीं दी, इसे पत्थर से ताला तोड़ा तो इसे ताजा बंद था, चिराग बंद था, बच्चे नजर नहीं आए, हाथ मारता गया। ये इतना बदबख्त था, दौलत ने इनको अंधा कर दिया। जब इनके हाथ आए तो दोनों शहजादे ऊपर आए, छोटे की चीख निकली, बड़े ने कहा ना मार मेरे भाई को। इसने बड़े को ऐसे अंदाज से जमीन पर गिराया, उसके दांत ऐसे पैर गिरे जैसे मोती जमीन पर गिरते हैं। अदादारों इसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी, ये बच्चों को बचाने के लिए आ गया कि मुझे कत्ल कर दे, मेहमानों को ऐसे नहीं मारते, अरब का दस्तूर नहीं है। इसने बीवी का सर कलम किया। इसकी बेटी अपने मकान की छत पर चढ़ कर कहती है, ओ कूफा के बेगैरत मुसलमानों, तुम्हें एहसास नहीं है 5 साल 7 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, आओ भाई मजलूमों को बचाने। ये इतनी बेगैरत थे, आज भी कहते कूफी लायूफी, कूफा वालों में वफा नहीं होता। ये इतनी बुज़दिल मकार और डरे हुए थे, ये अमीर मुस्लिम की जोड़ी को बचाने के लिए आगे नहीं आए। जब ये हारिस ने बच्चे को सीढ़ी पर से गिराया तो नीचे जब छोटा शहजादा गिरा ना, माथा फट गया, रो के कहते मुझे कपड़ा दे, मेरा माथा फट गया है। सारी रात एक सतून से बांध के रखा। शहजादे कहते हैं हमारे मामू जनाब अब्बास ने तुम्हें मकान बनवा के दिया था, कहा था इससे जानवर को बांधते हैं, इंसान को नहीं बांधना, तुम मासूम बच्चों को बांध रहे हो। इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, हमारे मामू ने तुम्हारी शादी कराई थी। ये इतना अंधा हो चुका था, इसे सारे एहसानात भूल गए। जब सुबह ले गया ना शहजादू को, फुरात के किनारे पर ले गया तो इसने कहा कि तुम्हारे सर कलम करता हूँ। शहजादू ने नमाज की इजाजत मांगी। जब शहजादू ने नमाज की इजाजत मांगी, कहते हैं वुज़ू की इजाजत सलामत करता हूँ। जब शहजादू ने नमाज की इजाजत मांगी, ये कहता है कि मैं वुज़ू की इजाजत नहीं दूंगा, तो यमन कर लो। एक 5 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा है, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे हैं, जिनको कमीज उतारना नहीं आता। जिस पर बेदर्दी से इसने बड़े शहजादे को कत्ल किया, उसका सर रखा फुरात के किनारे पे, लाश दरिया में बहा दी। खुदा की कसम रिवायत में लाश आगे जरा भी नहीं हुई, पानी का बहाव तेज था, लाश आगे नहीं हुई। छोटे भाई का इंतजार कर रहा है, छोटे भाई का सर कलम किया, उसका सर का उसकी लाश गिराई। बड़ा भाई कहते हैं हाँ छोटे इकट्ठे चलते आ जाओ। दोनों शहजादों ने बांधे को ले लाश इकट्ठी हो कट ली। ये इतना लईन था कि इस लईन ने तीर उठाया और कमान से तीर निकाल कर शहजादों को मारा। जब सर लेकर इब्ने ज़ियाद के घर दरबार में गया ना, इब्ने ज़ियाद दुनिया का सबसे लईन और बेगैरत और बेज़मीन शख्स था। उसने 1 साल कबल शहजादों को देखा हुआ था, जब शहादत नहीं, साल कबल देखा था जब शहजादों के नूरानी चेहरे। कहता ये वो बच्चे नहीं है जिनका सर दूल्हा है, कहता वही बच्चे हैं। कहते सारे इनके गाल कैसे फट गए, कहते पत्थर पे गिरता था, पत्थर पे गिरते थे इसलिए, कहते पत्थर पे इतने नहीं पड़ते। शहजादों के मुंह से आवाज आई, हमें सारी रात तमाचे मारता रहा है, हमारे गाल फट गए। अज़ादारों, इब्ने ज़ियाद बदबख्त होने के बावजूद उसने कहा इतनी मासूम बच्चे, मैंने तेरा सर काटने के लिए कहा था, तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा था। इब्ने ज़ियाद ने उसी वक्त हारिस का सर कलम कर दिया। अब्दुल्ला नामी एक मोमिन बैठा था, कहता अगर मुझे इजाजत दे इन बच्चों के सर धुला के ले आओ, सारी लहू बह रही है। अज़ादारों, अब्दुल्ला वो बेचारे का इतनी अज़ादार था, इतनी बहन से मोहब्बत करता था, जल्दी उसके पास कपड़ा जो नहीं था ना, बेचारे ने जल्द से गोद में सर ले लिए। जब दोनों सर लेकर गया ना, अपना कुल्ला कटकटाया, इसकी मासूम बेटी ने दरवाजा खोला, देखा तो लोग टपक रहा था कमीज से। कहते पापा आपने गोश्त लेना था तो कोई घर से कपड़ा ले जाता। कहता गोश्त नहीं, अमीर मुस्लिम की जोड़ी है, अमीर मुस्लिम की जोड़ी शहीद होगी, सर ले आया।